ہم اس وقت موجود ہیں مومن آباد ٹاؤن UC6 فرنٹیئر کالونی نمبر 3 میں. یہاں کے لوگ کن مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں، آئیے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. گیس کا یہ یعنی حساب کتاب ہو گیا ہے کہ 71 کے اندر دوبارہ ہم لوگ پہنچ گئے. 1971 کے اندر چولہے کے اوپر وہی لکڑی، وہی کوئلہ، وہی برادہ جلا رہے. بوریوں کے حساب سے پیسے لے لیے ہم لوگوں سے، غریبوں سے بوریوں کے حساب سے الیکٹرک کے لیے لے لیے. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو آخر ہم لوگ انسان ہیں. جانور جو ہے وہ 3 دن تک پیاسا یعنی وہ رہ سکتا ہے بغیر پانی کے، اس کے بعد وہ موت کے اس میں چلا جاتا ہے. ہم لوگ انسان ہیں، کہاں تک کے برداشت کریں گے؟ روڈ پہ جاتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے شیلنگ ہو جاتی ہے. کائی کے لیے تم نے کیا نام ہے لوگوں کو یہ دانہ ڈالا ہوا ہے، جیسے مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں کیا نام ہے قریب لانے کے لیے. کیوں تم لوگوں نے دانہ ڈالا کہ گیس آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، روڈ پکے ہوں گے، گلیاں صفائی ہوگی؟ کیوں؟ علاقے کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ مسائلستان بنا ہوا ہے. یہاں رات کو جو ہے اندھیرا ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جگہ جگہ جو ہے گڑھے بنے ہوئے ہیں، روڈ خراب ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ باقاعدہ اس پر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے. یہاں ہمارے مومن آباد ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے محترم عارف الوان صاحب جو ہیں وہ بھی اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دے رہے. پھر اسی طریقے پر ہمارے UC کے جو چیئرمین ہیں محترم صلاح الدین صاحب، ان کا بھی جو ہے اس UC کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے. حالانکہ اس UC کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بھی دیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹاؤن کو بھی دیا جا رہا ہے، UC چیئرمین کو بھی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. علاقے پہ تو نہیں لگ رہا ہے. سب سے زیادہ بڑا جو ہے نا یہ ندی کا مسئلہ ہے. جب عید والے دن کسی نے یہاں پر ہمارا نماز نہیں پڑھا، برائے مہربانی کر دو اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لو. ہمارا ندی کا نالا دیکھو آپ، عید والے دن کم سے کم 500-600 بندوں نے نماز نہیں پڑھا. پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہے، عید والے دن جو ہے نا نماز کسی نے نہیں پڑھا. یہ نالے کے اوپر ذرا آپ ایکشن لے لو. یہ دیکھو اس کے اوپر جو ہے نا مکانے بھی لوگوں نے بنایا ہے، کچرا اتنا پڑا ہوا ہے. ہمارے ٹاؤن کے جو ٹاؤن ناظم صاحب ہے، جو میری جہاں رہائش ہے اس UC کے وائس چیئرمین بھی ہے، لیکن اس کی کارکردگی بالکل صفر ہے. گیس کا تو ساتھی نے بتایا یہاں صرف بل آتے ہیں بجلی کے اور گیس کے، لیکن باقی جو حالات ہے یہاں پر ان کا جو ٹاؤن ہے یہ صرف پیداگیری کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں کا سب سے بڑا جو آمد رفت کا راستہ ہے وہ بچہ خان چوک ہے. آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی ہوگی، بالکل ہی حالات ناگفتبا ہے. یعنی آنے جانے کا کوئی، اگر کسی کو آپ بتائیں گے انڈریو وغیرہ کو کہ یہاں آنا ہے بنارس یا بچہ خان چوک کے سائڈ سے جانا ہے تو وہ آنے سے انکاری ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی، لیکن جو ہمارے منتخب لوگ ہیں ان کے کان پہ جو ہے وہ جو نہیں رنگتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مزوں میں ہے. ہمارے اگر آپ UC کے معاملات دیکھو تو بلدیاتی مسائل تو یہاں بے تحاشا ہے. یعنی جب سے یہ ہمارا ابھی الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوا ہے تو یہاں کے UC جتنے بھی چیئرمین ہیں یا کونسلر وغیرہ ہیں، تو اگر آپ فنڈ کے حوالے سے دیکھیں تو فنڈ تو یہاں کوئی یوٹیلائز ہوا نہیں ہے. گیس کا تو یہاں تقریباً کوئی سالوں سے ایشو چل رہا ہے کہ گیس کی بندش تو انتہائی زیادہ ہے. کہ اب کل میرا اپنا بل جو ہے گیس کا تقریباً 2 میٹروں کا آیا ہے 15,000 روپے. اب آپ یہ دیکھو کہ بل تو دڑا دڑ بھیج رہے ہیں لیکن گیس کا نام و نشان نہیں. پانی کی یہ ہے کہ ہمارے اس UC6 اس علاقے کی لیگل پانی اس کا یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیگل کوئی نہیں ہے. ایک جو یہاں سے ہماری ایک لائن آتی ہے اس سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو لائن لی ہے تو اس میں تقریباً 15 دن بعد 20 دن بعد کبھی مہینہ لگ جاتا ہے تو وہ پانی اس کا آتا ہے. لوڈ شیڈنگ کے یہ معاملات ہیں کہ لوڈ شیڈنگ یہاں تو کہنے میں 16 گھنٹے، لیکن 16 سے یہ 20 گھنٹے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ ہم چیئرمین کے پاس جاتے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر ہم پانی کے حوالے سے جاتے تو چیئرمین کہہ رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر گیس کے حوالے سے جاتے تو کہہ رہے ہیں میرا مسئلہ نہیں. بجلی 24 گھنٹوں میں جو ہے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں ہوتا ہے. اگر اس حوالے سے بھی جاتے تو کہہ رہے یہ میرا کام نہیں. یہ نالیوں کا مسئلہ، اگر بارش 2-3 منٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ندی ابھر کے جو ہے علاقوں میں نیچے گھروں میں چلے جاتے. اور دوسرا مسئلہ، مین مسئلہ جو ہے گیس کا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے مسلسل. جو کہ تو وہی الہی کالونی ہے، مطلب نہ گیس مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ بجلی کا نہ پانی کا. 1 مہینے کے بعد پانی آتی ہے اور 2-3 دن بیچے بس، اور گیس بالکل ہے نہیں.
और बिजली तो 24 घंटों में 18 घंटे 19 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा बाकी ये बड़ा नाला है, जब बारिश होती है तब 10 मिनट के बाद नाला जो है ना ऊपर के गलियों में आ जाता है, घर में दाखिल होता है, लोगों को परेशानी होती है। जब से ये लोग आए हुए हैं तो हमारे नाले बड़े बड़े हुए पड़े हुए, हमारे गैस नहीं है। कौन लोग, ये भले वाले आए हुए और कौन आ सकते हैं? वही लोग हैं। हमारे ऊपर 10 साल हुकूमत कर लिया यहाँ पे, लेकिन हमारे जब काम था वो सारी बिगड़ गया। वो जो पहले वाले काम थे वो भी तबाह कर दिया। अभी हम लोग ये कर रहे हैं जो हमारे ये नाले साफ हो जाए, इसलिए हमारे लोग ईद की नमाज के लिए पढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे। तो अब ये आप इनका मेहरबानी होगा जो हमारी गली मली साफ करें, हमारी गैस की पूछ ले ये हुकूमत से, इसलिए हमारे पास तो बिल आते हैं। सबसे पहले मसला तो ये है कि यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। उसके बाद गैस का बड़ा मसला है, तकरीबन 18 से 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है। उसके बाद फिर पानी का बड़ा मसला है, 18 से 20 दिन के बाद हमारा पानी आता है। जो मौजूदा सेटअप है यहाँ का UC6 का और इसके UC7 का जो मौजूदा सेटअप है बल्दियाती सेटअप, वो नहायत ही करप्शन ज़्यादा सेटअप है यहाँ पे। उनको कोई सरोकार नहीं है यहाँ के लोगों के मसाइल से कि वो जिए या मरे, उनको कोई मसला नहीं है। इलाके में बहुत बुरा हाल बना हुआ है भाईजान, गैस नहीं आ रहे, बिजली का किल्लत, बिजली बाकायदा वसूल हो रहे। वज़ीर आला से मेरी कराची से अपील है कि मेहरबानी करके ये गरीब तबका है, इन लोगों को गैस बिजली और पानी मुयस्सर करें। ये 60,000 आबादी वाला पुल है जो कि पीपल पार्टी के मतलब आला इदारों ने कहा था इसको तोड़ दिया था, और उसके बदले में मतलब उन्होंने हमारे से ये वादा किया था कि पुल हम बनाएंगे, और मतलब बशर्ते बनाने का वादा किया था और ये पूरा ना हो सका। और ये पुल अभी भी मतलब आप देख सकते हैं ये पुलिया रखा हुआ है जो किसी भी वक्त खतरे का सबब बन सकता है। ये छोटा सा पुलिया है, एक बड़ी आबादी है, यहाँ गुजरने में दुश्वारी हो रही है, मोटरसाइकिल मतलब पैदल चलने का रास्ता नहीं है। पुलिया बाजार वीडियो में आप देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात, ये नाले का सेवरेज का निज़ाम हमारा बड़ा गंदा निज़ाम है, जो कि मतलब हमने जो बारिश होती है तो आपको पता है कच्ची की आबादी है, पानी का बहुत ज़्यादा रफ्तार होता है यहाँ पर। जो सामने का मतलब जो हमारी दीवारें तो सारी मतलब टूट गई हैं, सही है, ड्यू टू पानी की प्रेशर की वजह से। अब मसला ये है कि मतलब हमने बड़े मतलब कैंपेन चलाए, हमने बड़ी वीडियोस बनाई, अपने चेयरमैन के पास गए, वाइस चेयरमैन के पास गए, लेकिन हमें कोई मौसर जवाब ना मिल सका। इस इलाके में ये जो तरीक़ाती काम जो नाला बन रहा था जिस वक्त, तो इस वक्त यहाँ पे मकान बने हुए थे, वो सारे मकान उन्होंने तोड़ दिए रोड बनाने के लिए। जो गरीब लोगों के मकान थे, लोग दर बदर हो गए, उनको अभी तक पैसे भी नहीं मिले, उसके लिए भी दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन वो नाला जो यहाँ पे पुल था आने जाने के लिए हमदरफ्त के लिए, वो पुल जो सिरे से नक्शे से गायब कर दिया इन्होंने। जो अब लंबा रूट इख्तियार करते हैं, लोग आते हैं इलाके के अंदर, तो उसके लिए जो है ये पैदल जाने वालों के लिए ब्रिज बनाए इन्होंने, लेकिन ये भी टूट फूट का शिकार है। कई दफा बच्चे गिरे यहाँ पे, लेडीज गिरी है यहाँ पे। तो ये जो पुल है हमारा, सबसे पहला मुतालबा ये हमारे ये पुल बनाए, और ये बारिश का पानी यहाँ के जमा होता है, इसके कोई सिस्टम बनाए। ये पुल के बारे में हम लोग ने बहुत भागा दौड़ी किया है, मगर अली अहमद साहब ने बोला कि हम बना के देंगे, ये रोड भी बनेगा, ये रोड भी आपके सामने, ये पुल भी आपके सामने। ये पुल अभी तक जो है ना, ये पता नहीं कब बनेगा। ये रोड जो गया है, ये बाकायदा मेट्रो रेल 4 नंबर के साथ मिलता है, फ्रंटियर मोड़ के साथ मिलता है, और ये पुल अभी तक बना नहीं है। और ये पानी का पेप देखो, ये क्यों नहीं बना रहा है ये रोड? ये फंड कहाँ गया है, किसके पास चला गया है? समझ गए? यहाँ पानी का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है। जिसके पास भी जाओ बोलो सही है, कोई सुनता नहीं है। मैं इस इलाके का पैदाइशी हूँ, यहाँ से बचपन में रहता हूँ, और ये नाला जो है उस वक्त तक बिल्कुल सही था जब पहले हालात में था। जब से इन्होंने दीवारें लगाई तो नाले का पानी हमारे इलाकों और घरों में घुसता है, यहाँ तक कि ये पीछे ऊपर चढ़ाई तक ये पानी आता है और वहाँ जमा होता है। और ये मकान जो है ये तो बिल्कुल ही बेचारे तबाह बर्बाद है। इनके तो घरों में जो सामान है वो सब खराब हो जाते हैं, और यहाँ से लेके मेट्रो तक ये रास्ता सारा खराब रहता है। जब भी यहाँ बारिश होता है तो तकरीबन 5-5 फुट बारिश होता है, पानी आता है। इस साइड भी आधा पानी जाता है और आधा पानी इस साइड जाता है। और यहाँ का जो चेयरमैन है सलाउद्दीन भाई,
और इदरीस भाई, ये दोनों आके कहते हैं कि ये एरिया हमारे पास नहीं है, ये कहता है ये एरिया हमारे पास नहीं है, और ये कहता है ये एरिया हमारे पास नहीं, तो फिर हम किसके पास जाएंगे। ये नाले की सफाई तब होती है जब कुदरती बारिश होती है, सारा कचरा वो अपने साथ बहा लेती है, तब होती है। इसके अलावा कोई सफाई नहीं होता है और न काउंसलर काम करता है। इन लोगों ने वोट के दिन जब आते हैं, ये लोग खुद एक एक घर में आते हैं, वोट मांगते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, हम काम करेंगे। भाई हमारा जो है ना ये नाले के पास घर है, और इस नाले के ऊपर नाले की वजह से जो है ना इतना घर में जो नुकसान हुआ, पैसों तक जेवर तक सामान तक सारा जो है ना बहा कर ले गए यहाँ से, और वो तकलीफ है हम लोग को, ये मोहल्ले वाला सबको तकलीफ है, हमारे को खाली सबको तकलीफ है। यहाँ तक कि ये बच्चे जो है ना नाले में गिरे, अल्लाह पाक ने बचा लिया, बंदा है उसने उठाया। हम खुद जो है ना नाले के अंदर गिरा था, मेरा कोई पता नहीं इतना गहरा नाला है, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरा कोई बचाया, समझ गए नहीं इतना गहरा है। ये चेयरमैन बोलते हैं 20 साल से नाला बंद है, ये UC6, ये UC7, ये सलाउद्दीन भाई बोलते हैं मेरा नहीं है, ये दूसरा भाई बोलते हैं मेरा नहीं है। ये नाले का पानी 5-5 फुट घरों में जाता है, और मेहरबानी करके हमारे को ये जगह सही करके दो। ये बहुत पानी होता है, इधर 5 फुट 6 फुट पानी होता है। गुजारिश है कि इस इलाके में आम लोग का मोहल्ले पे जो है ना बिजली का बहुत लोड शेडिंग चल रहे हैं, और मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर लोग बिलें नहीं भर रहे, मगर हुकूमत में की काम है कि भाई इसकी इंक्वायरी करे, उसके बाकायदा जो बिल नहीं भरे उसके बिजली कट ले, और जो भर रहे मेहरबानी होगी इसके बिजली का मसला हल कर। हमारे मोहल्ले में जो है ना सरकारी स्कूल है, मगर उसमें सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी है। मुझे सेकेंडरी स्कूल की ज़रूरत है, मैं इतना दूर जाता हूँ, मैं इतना दूर नहीं जा सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी सहूलत चाहिए। इस मोहल्ले में जो UC चेयरमैन है उससे दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल बनाए। तो कौंसल के पास कोई इख्तियारात नहीं होता है, हमें जो चीज़ें दे रहे हैं वो चेयरमैन UC का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो UC चेयरमैन देता है। अगर वो ढक्कन है, गाड़ी है, सीवरेज का निज़ाम है, जो भी चीज़ है, 3 सालों में जो हमने काम किया, तारीख़ी काम किया हमने UC6 में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी पे काम किया, हमने गैस पे काम किया, हमने बिजली पे काम किया, हमने सीवरेज पे काम किया, हमने सड़कें बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारा जो ये जमील बिरयानी वाला रोड है ये बनाया, इसमें अंदर इंट्रल जो वो है गलियां है वो बनाया, हमने गोश्त गली में 15-16 गलियां बनाया, वहाँ रोड भी बनाया। जो 3 चीज़ें आपने बताई नालों के हवाले से, पुलिया एक आपने बताया कि यार NLC के एक नाला बना है जो पूरे वफाक ने बनाया, औरंगी नाला, जिसके अंदर जहाँ जहाँ ब्रिजेस बने थे उन्होंने ख़त्म कर दिए, और कुछ मेन जगहों पे ब्रिजेस छोड़ दिए, जगह जगह वाले ख़त्म कर दिए। तो ये मेरे टेन्योर शुरू होने से 4 साल पहले की बातें हैं। अब अगर उस दौरान जो पुलिया ख़त्म हो रहे थे तो उस दौरान अहले इलाका को इकट्ठा मिलकर उनसे बात करनी थी कि भाई ये तो हमारा मेन गुजरगाह है। बाकी बारिशों के हवाले से नाला स्पेशल इसका मैं बारहा जिक्र करता हूँ, तो ये एक तो ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट और 3 टाउन का पानी मेरे पूरी UC में बहराम स्टोर, गोश्त गली से, खैबर पुलिये से, मानसेरा कलवर्ट से, मदीना बस्ती से, फिर पंजाबी वाड़ा, फिर इलाही कॉलोनी, इन तमाम एरिया से गुजर के औरंगी नाले में गिरता है। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि अगर ये नाला नहीं होता तो बाकी UC में कुछ होता नहीं होता। मेरी UC के अंदर हम कॉलेज और स्कूल्स बना चुके होते इतने पैसों से। कैसे हम अगर बारिशों से पहले सफाई करते हैं तो हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। नाले के दोनों अतराफ में लोगों ने घर तामीर किए जो मेरे चेयरमैन बनने से भी 20 साल पहले 30 साल पहले के हैं। हमारे पास एक्सकेवेटर आगे जाने की गुंजाइश नहीं होती, जस्ट पुलिये के ऊपर मशीन जाके खड़ा होता है और वहीं से कचरा उठा के जब बारिश होती, मैं अगर अपना पूरा UC भी साफ करूं तो जहां जहां से मैंने आपको बताया कहां कहां से पानी आता है उसमें कचरे, जितना कचरा है उसके अंदर से बहता हुआ हमारे पास आता है और ये पुलियों के अंदर चोकिंग पॉइंट के अंदर पसता है।